Good morning, children. This is class 4, uh, social studies. Okay, in this video, I will continue the work which I had left in my last Zoom class, and we were discussing chapter number 2, almanac. Almanac means calendar. Okay, and here we were discussing about the importance of calendar. We had already discussed two important factors of the calendar. Now I am starting my video from page number 14. Third point, individual. In this part I will be discussing about the importance of कैलेंडर फॉर एन इंडिविजुअल. एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन के लिए what is the importance of the calendar. Okay, now I will read, then after that I will be taking some other points also in this video. There are number of reasons why individuals need a calendar. बहुत सारे reasons हैं. Various reasons means number of reasons means more than one reason why individual, हम लोग सिंगल पर्सन कोई अकेला कैलेंडर क्यों रखता है. Sometimes we people keep pocket calendar also because that is very useful. Okay, so to have a look easily, or we can see in the through the mobile also we can have the calendar. बट हम यहाँ लोग कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि कितनी तरह के होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑन पेज नंबर 14. हैविंग ए कस्टमाइज्ड कैलेंडर that highlights the important events along with areas helps individuals to keep track of important events, activities, financial needs, and also give them a personalized touch. Customized calendar का क्या मतलब है? ऑफिशियल और गवर्नमेंट कैलेंडर विच इज़ इशूड और मेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो क्या हमें बताता है? हाईलाइट्स वाले जोर देता है, बताता है कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, एरियाज़ जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को टू ट्रैक आउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल नीड्स. बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसके कैलेंडर के द्वारा जानते हैं और हमें एक पर्सनलाइज टच देता है. यानी हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत वो हेल्प का काम कर रहा है अगर वो हमें ये सब जानकारी दे रहा है. एंड दे विल कंटिन्यू यूजिंग ऑल द ईयर अराउंड, और उसको वो पूरे साल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हैं. ठीक है, नाउ वी गो टू द अदर साइड of page number 14. Calendars are not just list of events. Calendar जो है वह सिर्फ events की एक list नहीं होती. See here they have given one shot of the calendar. Some buildings, important buildings are seen here. Some of, I think it is a building from foreign country, not India, and it is not written. Important features are usually taken in the important sceneries, important building, monument. They are taken in the important people also in the calendars. Okay, usually I am giving you one or two examples. Calendars are not just events. ये सिर्फ हमें घटनाओं के बारे में नहीं बताते. They are filled with possibilities and excitement for what is coming in the future. और ये हमें ये भी बताते हैं कि आगे क्या आने वाला. सपोज फॉर एग्जांपल वी सी द कैलेंडर, वी नो दैट दिवाली मस्ट बी देयर इन विच मंथ, देन वी टर्न द पेज, वी सी ओ इट इज़ इन अक्टूबर. सो वी हैव एक्साइटमेंट कि अच्छा अक्टूबर में होगी, देन वी विल हैव टू मेक द प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वी विल इन्जॉय, है ना. सो इट गिव्स अस एक्साइटमेंट. अच्छा आपकी बार तो जल्दी पड़ी है. वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग, है ना. वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग. What is coming in the future of a story is yet to be told. और बहुत सी चीज़ें जो आगे आने वाली हैं. Don't underestimate the importance of the calendar. और इसको underestimate मत करिए, यानी उसको कम मत समझिए कि कैलेंडर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. It gives us excitement also. Okay, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ों की. अच्छा इसमें होगा. सपोज जस्ट इमेजिन कि अगर कैलेंडर नहीं होता तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता कि हमें कैसे पता चले कि कमिंग इवेंट्स जो आने वाले हैं, कमिंग फेस्टिवल्स, वो कौन से दिन पड़ रहा है, विच डे दैट विल बी, और विच मंथ. क्योंकि सम फेस्टिवल आर फिक्स्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून, सो देयर डेट्स आर नॉट फिक्स्ड. ओके,
Holi also, Diwali also, and Eid also. They are every time their dates are changed. So one has to see the calendar to see the date. They are not celebrated on fixed dates. Okay. Budh Purnima also, because it is according to the which we had recently had in this last week on 26th. So that because that day in some festivals the moons, there should be full moon or there should be no moon, or new moon also. No moon, full moon, and new moon. In case of Eid it is new moon. In case of Deepavali there should be no moon, अमावस की रात में होती है, ठीक है, and Holi on full moon. So in that case we have to consult a calendar to see that this year on which date these festivals are falling. Okay, so this is the importance of the calendar. The uses of calendar we will see. Planning the daily activities, हम अपनी activities को plan कर सकते हैं. We can write in advance on dates कि हम इस दिन इस date पे I have to do this one, so that just to be updated with this and we don't forget also. We also do this कि हम लोग मंथ नया स्टार्ट होता है. आई नो दैट आई हैव टू डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, न्यू मंथ है ना, तो हम 15th पे वहाँ हमने नोट कर लिया कि भाई हमको 15th को आई हैव टू मीट समवन और आई हैव टू डू दिस वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क. तो दैट इज़ वेरी 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 गुड एंड वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो. प्लानिंग ऑफ द एंड डेली एक्टिविटीज़ ऑल्सो आई कैन राइट कि हम आज के दिन में हम ये काम हमें करने हैं एंड वी ट्राई टू फुलफिल इट. कीपिंग ए ट्रैक ऑफ इवेंट्स को देखना है कि कौन से घटना कब काम कौन सा किस दिन होने जा रहा है, कोई खास घटना होने जा रही है. इवेंट का मतलब इट मे बी ए मैरिज ऑल्सो, somebody's engagement also, some other result is coming, final result of the examination may be coming कि इवेंट इस दिन आ जाएगा, तो we will so that we don't forget it. Staying organized and enhancing productivity, और इसमें क्या होता है कि हम उसको हिसाब से हम ऑर्गेनाइज रहते हैं, हम उसी हिसाब से चलते हैं कि भाई हमारे इस काम में इतने दिन रह गए हैं. सो द कैलेंडर हेल्प्स अस टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी, और हम इससे अपने काम को ऊंचाई पे, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको ऊंचाई पे ले जा हाइट्स पे ले जा सकते हैं. हाइट इन द प्रोडक्टिविटी, ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई पे ले जा सकते हैं. देन नंबर 4, प्लानिंग इफिशिएंटली एंड मीटिंग द डेडलाइंस. और हम को अगर पता है कि हमें डेडलाइन मीन्स हमें पता है कि हमें इस डेट में ये काम कर लेना है, तो हम उसी हिसाब से एफिशिएंटली अपने काम की प्लानिंग करते हैं कि हमको इतना पर डे के हिसाब से हमको इतना काम ख़त्म करना है. देन ओनली वी विल बी एबल टू मीट द डेडलाइन. माने अंतिम दिन तक हम उस काम को कर लेंगे पूरा. मीटिंग द डेडलाइन का ये मतलब है कि जो डेडलाइन है यानी कि जो अंतिम तारीख है, लास्ट डेट है, उस तक हम अपना काम कर लेंगे. ठीक है. रिमेम्बरिंग बर्थडेज एंड कीपिंग कमिटमेंट्स, हमें कमिटमेंट करना है कि हमें कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है. और बर्थडेज ऑल्सो हम पहले ही कैलेंडर में मार्क कर दें कि इस दिन हमारे इस रिलेटिव का बर्थडे हो रहा है, सो दैट वी डोंट फॉरगेट टू विश देम, है ना. हम याद रखते हैं तो हम कैलेंडर में सपोज हमने उस डेट पे रेड सर्कल बना दिया और लिख दिया कि उनका बर्थडे, आंटीज़ बर्थडे और ग्रैंडफादर्स बर्थडे. सो वी विल रिमेंबर, वी विल हैव ए लुक एट द कैलेंडर एंड वी कैन विश देम. अदरवाइज हम लोग कभी कभी अपनी डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करने को. ठीक है. सो कैलेंडर हेल्प्स अस टू रिमेंबर. देन मैनेजिंग द डेली शेड्यूल, और डेली शेड्यूल को भी कैसे कैसे कि वी कैन शेड्यूल मेक द शेड्यूल फॉर द होल वीक, कि हमें मंडे को हमें ये काम करना है, ट्यूसडे को दिस वर्क आई हैव टू फिनिश, देन ऑन वेडनेसडे आई हैव टू डू दिस. तो ये डेली शेड्यूल है, यानी डेली बेसिस पे कि डेली शेड्यूल कि हमें ये सब काम इस दिन ये काम, इस दिन ये काम, इस दिन ये काम करना है. ठीक है. देन एलिविएटिंग द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, और कैलेंडर जो है हमको एंग्जाइटी को और तनाव को और परेशानी को, एंग्जाइटी को, घबराहट को कम करने में मदद करता है. क्योंकि अगर हम देखते हैं अच्छा आई हैव स्टिल दिस मच टाइम लेफ्ट, सपोज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग है, सो यू कैन अच्छा फाइनल डेट तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने की दिस डेट इज़, आई हैव स्टिल 15 days और 10 days टू स्टडी. फिर हम लोग अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जैसे यू पीपल स्पेशली यू स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, आप बांट लेते हैं कि फॉर ईच सब्जेक्ट आई कैन गिव 2 days. ओके.
सो ये इसको इससे हमारा क्या होता है, एंग्जाइटी, हमारी घबराहट जो है और जो स्ट्रेस हो रहा है, हमारे दिमाग पे जोर पड़ रहा है, वो कम हो जाता है। एलिविएटिंग मीन्स मेक लेस, माने उसको कम करना। देन नंबर 8, नोइंग द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल डेट्स। हाँ, फेस्टिवल की डेट के लिए तभी भी हमने आपको बताया कि सम डेट्स आर नॉट फिक्स्ड बिकॉज दे आर सेट अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द मून। आई टोल्ड यू राइट नाउ। तो वो भी हम देख सकते हैं इन एडवांस की विच फेस्टिवल इज़ फॉलिंग इन। कभी कभी मंथ भी चेंज हो जाते हैं, समटाइम्स अक्टूबर से नवंबर हो जाता है दिवाली, समटाइम्स इट इज़ इन अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर, और समटाइम्स इन द बिगनिंग of November because of the position of the moon. That is why the date changes every year. It is not same every year. Okay, so this is a fact, you must know. Okay, now I go to the next page, that is page number 15. Keeping in mind that the calendar is only helpful to you if you immediately update any schedule changes and add any new event or check it frequently. कैलेंडर, एक चीज़ हमें बस दिमाग में रखना है कि कैलेंडर हमें सिर्फ उस तरह से हेल्प कर सकता है कि हम अगर कोई भी नया शेड्यूल चेंज हुआ है तो हम उसको लिख लें तुरंत और उसको चेक करते रहें, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं नोट करेंगे तो हम फिर भूल जाते हैं और वो डेट निकल जाती है, वो काम नहीं हो पाता। ठीक है। फॉर सम पीपल चेकिंग देयर कैलेंडर फ्रिक्वेंटली कुड बी वंस अ डे और इट कुड बी मल्टीपल टाइम्स अ डे। और कुछ लोगों के लिए कैलेंडर को चेक करना दिन में एक बार हो सकता है और कुछ के लिए ये मल्टीपल टाइम्स मीन्स मोर देन वंस, कई बार उन्हें कैलेंडर देखना पड़ता है। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट, स्पेशली कुछ कंपनीज़ में जो लोग होते हैं उनके पास तो बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है कि वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन दिस डे। इन वन डे दे डू सेवरल टास्क, they meet they have meetings from many people, so they keep all this and the calendar helps them to do their work nicely, okay, or efficiently. Then Gregorian calendar, अब हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर का टाइप क्या है, हमारा जो कैलेंडर है वो क्या है। Actually we will study about in the coming part of this chapter ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम बताएंगे इसको, आप हम पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाएंगे। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ टुडेज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिविल कैलेंडर एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न और क्रिश्चियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर अभी हम लोग जो अंग्रेज़ी वाला हम लोग करते हैं जिसमें जनवरी टू दिसंबर मंथ्स होते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी कि जो डेट्स हैं वो इंटरनेशनल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड द डेट आर सेम, डेट्स आर सेम। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में यहाँ पे कोई सा भी मई मंथ चल रहा है तो किसी दूसरी कंट्री में कोई और डेट होगी या कोई और मंथ चल रहा होगा, ऐसा नहीं। इट इज़ इंटरनेशनली, यानी पूरे संसार में, पूरे देश, सारे देश, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है ये, यानी कि ऑल एक्सेप्टेड एंड ऑल वर्क एंड गो एंड हैव द सेम कैलेंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। The Gregorian calendar is the most widely used calendar in the world today. Yes, this is what I told you right now कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो और सिविल कैलेंडर है और क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं इसको, वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए सोलर कैलेंडर बेस्ड ऑन 365 डेज़। और इसमें क्या होता है, इस कैलेंडर में होल ईयर में 365 डेज़ होते हैं। द कॉमन ईयर डिवाइडेड इंटू 12 मंथ्स और द ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू 12 मंथ्स ऑफ इरेगुलर लेंथ। इरेगुलर लेंथ का क्या मतलब है कि द लेंथ माने द डेज आर नॉट सेम, है ना, इरेगुलर है, यानी सम मंथ्स हैव 30 डेज, सम मंथ्स हैव 31 डेज एंड इन फरवरी 28 डेज, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर। सब में ऐसा नहीं है कि फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर वी हैव ऑल 30 डेज और 31 डेज। इरेगुलर आई मीन्स we will come to know about it. So this is the photograph of a Gregorian calendar. You can see January, February, March, then April, May, June, then July, August, September, October, November, December. Okay, so this is Gregorian calendar which we usually have in our homes, children. So we will study more about it in the next I think Zoom class. I will be doing it because
we have some more part of this chapter, and that we will discuss in the next class. Okay, thank you.